Good morning, students. Today we will discuss the third chapter of our economics, that is money and credit. In our previous lecture, we had discussed about the sectors of the Indian economy, and in that chapter, we had studied about the primary sector, secondary sector, and tertiary sector. And we had seen that both the primary and secondary sector, they produce good, and the tertiary sector provides services, and the interrelation, interlinked and interdependence among the three sectors. We had also studied about the importance of tertiary sector, the contribution of all the three sectors in GDP, and the contribution of all the three sectors in employment also. Okay, now we will do the next chapter, money and credit. If you want to purchase anything which is produced by either primary sector or secondary sector, you need money. If you want to get any services which is providing by the tertiary sector, you also need money. So without money, you can neither purchase any goods nor you can get any services. That is why money is very important. And in this chapter, we will discuss about the meaning of money and the history of evolution of money we will discuss. Next word is credit. Credit means loans. How credit is important for the development of the country, how credit can be created, what is the loan activities of the bank. These things we will discuss in this chapter. Let us start with the chapter. So before money came, you can say just after the early stage of civilization की शुरू में there was no money. If there was no money, how people they got their goods exchanged? आपस में कैसे खरीदते थे, बेचते थे? That time people they used to purchase, that the system was prevailed during that time, and that system was known as barter system. You all know very well. Barter system means it is commodity for commodity. It is a system in which one commodity is exchanged for the other commodity. You can see in the picture, it is very clear. This girl, she is having bananas, and this boy, he is having books. They want to exchange each other goods. ये बनाना देना चाहती हैं और ये बदले में बनाना लेके बुक्स देना चाहता है. Similarly, here also you can see this man, he is having meat, and this man, he is having microwave. Although microwave उस टाइम था नहीं, still तो दोनों आपस में गुड्स एक्सचेंज करते हैं. और ये जो बार्टर सिस्टम, इट वाज रनिंग वेरी गुड ड्यूरिंग दैट पीरियड. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आई. इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? लेट अस सी. से दिस इज़ अ मार्केट प्लेस. ये एक मार्केट प्लेस है. इसमें एक पॉटर है, एक शू सेलर है और एक वीट है. वीट सेलर के पास वीट है, शू सेलर के पास शू है, एंड द पॉटर शी इज सेलिंग हर पॉट्स. अब दिस पॉटर्स, शी इज हैविंग पॉट बट शी वॉन्ट्स टू बाई शूज़. उसको शू चाहिए. फिर चलते शू सेलर के पास. शू सेलर के पास शू तो है, बट ही डजंट नीड पॉट, ही नीड्स वीट. इसको वीट चाहिए. चलो वीट सेलर के पास चलते हैं. वीट सेलर के पास वीट तो है, बट ये शूज़ नहीं चाहिए वीट सेलर को. वीट सेलर को क्या चाहिए? क्लोथ्स चाहिए, जो कि कोई भी मार्केट में क्लोथ सेलर है नहीं. तो इसमें अगर आप देखोगे, बहुत सारा इंसिडेंट्स इसके साथ लिंक्ड है. इंसिडेंट्स क्या है? पहले तो चलो पॉटर के पास. पॉटर जो बेचना चाहता है, या द पॉटर व्हाट शी वांट्स टू सेल, वो जो बेचना चाहती है, मार्केट में खरीदने के लिए कोई है? फर्स्ट इंसिडेंट्स. सेकेंड, वो जो खरीदना चाहती है मार्केट में बेचने के लिए कोई है? ये भी एक इंसिडेंट्स है. नेक्स्ट क्या होता है?
जो आप बेचना चाहते हो और जो आप खरीदना चाहते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड, द थिंग यू वॉन्ट टू सेल एंड द थिंग यू वॉन्ट टू बाय, सिमिलरली एक सेलर मार्केट में होना चाहिए। जो आप बेचना चाहते हो वो खरीदना चाहता है, और जो आप खरीदना चाहते हो वो बेचना चाहता है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच अ मैच इन द मार्केट। ऐसा मैच मार्केट में मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये जो मैचिंग सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल नहीं हो जाती हैं, तब तक नीदर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट nor you can get your product या goods from the market. So double coincidence of wants, it was a great problem during the barter system. Let us see what is the definition of double coincidence of wants. Double coincidence of wants क्या है? When in the exchange both parties agree to sell and buy each other commodities, it is called double coincidence of wants. और इन बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। ये होना ही था। अब इस मार्केट में देखो, दिस देयर कोइंसिडेंस इज मैचिंग, मीन्स इसके पास फ्रूट है एंड ही नीड्स फिश, सिमिलरली इसके पास फिश है और ही नीड्स फ्रूट्स, मीन्स वो जो चाहता है इसके पास वो है, और ये जो चाहता है इसके पास that thing is there. So ये मैच मिलना, डबल कोइंसिडेंस फुलफिल होना, it was very difficult during the barter period. Means it was a major problem. What was the problem of barter system? If the question comes, double coincidence of wants was the major problem of barter system. तो जब प्रॉब्लम है सॉल्व तो करना है ना, बिकॉज द नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जब प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। सो लेट अस सी व्हाट वाज द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन था? पहले शुरू में वो लोग क्या करने लगे, ये जो शेल्स है, दीज आर शेल्स, ओके, देन बीड्स, फेदर, देन जेम्स, प्रेशियस ज्वेल्स, इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उन्होंने एक स्टैंडर्ड किया था कि फेदर, अगर आपके पास फेदर है, अगर आप फेदर देते हो, यू कैन गेट व्हीट, यू कैन परचेज पॉट, यू कैन परचेज क्लोथ्स, एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ फेदर, एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ शेल्स, एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ बीड्स। ये भी ठीक था, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आई। इसमें क्या प्रॉब्लम आई? शुरू में देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर सम टाइम किसी को एक शेल के बदले में someone was getting 2 apples, someone was getting 4 apples. तो जिनको 2 apples मिला था, he became angry because there was no standard units. कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट्स या कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, इसलिए जिसको जो मर्जी वो वैसे ही देते थे। कभी 1 फेदर के बदले में जितना व्हीट किसी को मिलता था, किसी और को अलग मेजरमेंट में हुए, क्योंकि मेजरमेंट सिस्टम भी नहीं था उस टाइम। तो ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम विथ दिस फेदर, बीड्स एंड शेल्स। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए भी फिर क्या हुआ, कॉइन्स, मेटल कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ। मेटल कॉइन्स भी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। शुरू में गोल्ड कॉइन्स होता था। अब गोल्ड कॉइन्स में क्या प्रॉब्लम आई बाद में? यू हैव स्टडीड इन योर मैथ्स अ फेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू। अपने मैथ्स में पढ़ा है ना, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स ये कॉइन के ऊपर जो लिखा हुआ है, सपोज इट इज रिटन 1 ऑन द कॉइन, इट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। लेकिन द कॉइन इज मेड अप ऑफ गोल्ड,
गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड का भी एक वैल्यू है। तो कॉइन के ऊपर एक है, तो कोई भी सामान अगर आप खरीदना चाहते हो, यू विल गेट द गुड्स अकॉर्डिंग टू दिस 1 रुपी से, 1 रुपी के हिसाब से यू विल गेट द थिंग्स। बट अगर कॉइन्स को अगर आप गोल्ड को मेल्ट करके एज अ प्रेशियस मेटल्स आप यूज करते हो, यू विल गेट मोर गुड्स एज कंपेयर टू ₹1, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा थी उस टाइम। से सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल 3-4 रुपीज़। जब गोल्ड मेल्ट करके लोगों को 3-4 रुपीज़ मिल रहा था, तो पीपल दे वर नॉट यूजिंग दिस कॉइन्स एज अ कॉइन, दे वर यूजिंग दिस कॉइन्स एज अ मेटल। फिर गोल्ड कॉइन्स के साथ प्रॉब्लम आई, गोल्ड कॉइन चेंज होके सिल्वर कॉइन आए, सिल्वर कॉइन के साथ भी सेम प्रॉब्लम, प्रेशियस मेटल्स फेस वैल्यू रियल वैल्यू में। फिर कॉपर कॉइन आए, फिर कॉपर कॉइन में भी प्रॉब्लम आई। तो अभी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, दिस इज करेंसी, इधर पेपर नोट्स और कॉइन्स, और एक होता है डिपॉजिट्स विद द बैंक। सो लेट अस सी व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में होता है करेंसी एंड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक। ओके, लेट अस डिस्कस फर्स्ट द करेंसी। करेंसी में क्या है, करेंसी में 2 टाइप्स ऑफ करेंसी, एक पेपर नोट्स भी होते हैं और एक कॉइन्स भी हैं। यू नो ना, नोट्स भी है 10 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट, देन 50 रुपीज़ नोट, 100, 200, 500, 2000 रुपीज़ नोट। पहले 1000 रुपीज़ भी होता था, लेकिन वो बैन हो गया है। अब कॉइन्स भी, अभी आप तो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ कॉइन होते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे उस टाइम 1 पैसा कॉइन, 2 पैसा कॉइन भी आई हैड सीन। ओके, तो ये जो करेंसीज है, चाहे पेपर नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, हु कैन इशू, ओनली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक इज द apex bank of the country, supreme bank of the country. That is why Reserve Bank has only the authority to issue currency notes on behalf of, किसके behalf में, on behalf of central government के behalf में ही Reserve Bank currency और notes और coins issue कर सकते हैं। No other organization, कोई भी country में और organization नहीं है जो कि करेंसी और नोट्स कॉइन्स इशू कर सकते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया है कि करेंसी नोट्स के ऊपर किसकी साइन होती है, नोट्स के ऊपर साइन होते हैं द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक के प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है, डू यू नो? यस, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। अभी उनके टाइम पीरियड में, गवर्नरशिप के टाइम पीरियड में जितने भी करेंसीज या पेपर नोट्स प्रिंट होगा, सभी में उनका ही साइन होगा। पहले जो जितने भी, उससे पहले उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे, सभी का सिग्नेचर है ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। तो ये जो रिजर्व बैंक है, एज इट इज़ द एपेक्स बैंक, तो रिजर्व बैंक छोड़ के कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो करेंसी इशू कर सकते हैं, ना तो कॉइन्स इशू कर सकते हैं। एंड एज इट इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, करेंसी इट इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ लॉ है। दैट इज वाई नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट रुपीज एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंडिया में किसी भी कोने में रुपीज़ को लेने में कोई भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। विद इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़, रुपीज़ के बदले में एनीवन कैन परचेज एनीथिंग विद इन आ कंट्री। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे आउटसाइड आवर कंट्री, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज हो जाता है। उसमें हम पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड यूनिट हम
डॉलर को मानते, यूएस डॉलर को मानते हैं। अदरवाइज जिस कंट्री में आप जाएंगे आप अपनी रुपीस को उस कंट्री के करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर डॉलर में आपकी रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप यूके में जाओगे तो पाउंड में रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूएस में जाओगे यूएस डॉलर में आपको रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो within the country no one can deny to accept the money, because money is proclaimed by law and it is issued by the government of India and it is considered as a medium of exchange. Let us see what is written here. Modern form of money include currency, that is paper notes and coins. In India, Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of central government. No other individual or organization is allowed to issue currency. The rupee is widely accepted as a medium of exchange in India. अब मनी आने के बाद बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, देन फेदर, शेल, बीड्स, देन कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, मेटल कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन की जो प्रॉब्लम थी, इट इज सॉल्व्ड. अभी जो कॉइन है दिट इज मेड अप ऑफ एलॉय, तो इसके जो फेस वैल्यू और रियल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसलिए दैट इज वाई पीपल आर यूजिंग द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन. आई थिंक दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me. In the next video we will discuss about the second form of modern form of money, that is deposits with the bank. Thank you and have a good day.